Good morning, everyone. I welcome you all on this virtual digital learning platform. Now, I'll be starting with Science Class 10th Chapter 1, that is Chemical Equation and Reactions. Okay, so now basically we will do Chapter 1 of Science. Chapter 1 is Chemical Equations and Chemical Reaction. Chemical Reaction and Equation. Now, before actually starting the chapter and understanding the concepts, I like to give a brief introduction. What do you mean by these terms? Like, what is the meaning of chemical reaction? What is the meaning of equations? Generally, you all have an idea about maths. In maths, we deal with equations. But here, what do you mean by equations in science? So, let's start. Now, firstly, I'll be telling about what do you mean by chemical reaction. Chemical reaction is defined as conversion of or transformation of one chemical species into the other. What I'm saying, chemical reaction is transformation of one chemical species into the other. लेट सपोज एक केमिकल कंपाउंड है हमारे पास ए, ये ए कंपाउंड कुछ ना कुछ रिएक्शन करके बनाता है कंपाउंड बी. तो जब एक केमिकल स्पीशीज दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. आई विल रिपीट द डेफिनेशन वंस मोर. Chemical reaction is the transformation of one chemical species into the other. Okay. I hope you will have no doubt in this and you all have understood. Now we'll be dealing what do you mean by chemical equations. Now let's start what do you mean by chemical equation. Chemical equation simply means writing the reaction with the help of symbols and formulas. Okay. What we do here is, chemical equation means it is a mathematical representation. Chemical equation is mathematical representation of chemical reaction. What do I mean by this term? That chemical equation is the mathematical representation. This mathematical representation is done with the help of symbols and formulas. This is done with the help of symbols and formulas. In class 9th, you all have studied how to make a formula of a compound. For example, just a quick recap I am giving. Let's suppose you are given, you have to write the formula of water. So, what will be the formula of water? You know, water is hydrogen and oxygen. It is simply H2O. This was really simple. Now I think I'll also give an example to revise more. Write the formula of calcium hydroxide or calcium oxide. It would be easy for you. These all things you have learnt in 9th, I am just revising or repeating the concepts. If you have to make the formula of calcium oxide, first you have to write the symbol. Calcium का symbol होता है Ca, oxide is O. Calcium की valency है +2, oxide की valency है -2. हम valencies को cross करते हैं. So here we get CaO. यहाँ दोनों जगह 2 आएगा and these both 2 are neutralized or cancelled. So the formula is CaO. I hope you have got what do you mean by chemical reactions and chemical equation. Chemical reaction जब एक chemical species दूसरे में बदल रहा है, इस चीज़ को बोला जाता है chemical reaction. ये जो process है एक species के दूसरे species में बदलने का. फिर केमिकल इक्वेशन क्या है? इसी प्रोसेस को जब हम शॉर्ट में बता रहे हैं, फॉर्मूला से, सिंबल से बता रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कहते हैं केमिकल इक्वेशन. आइए अब हम रूल्स जानते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के. केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए केमिस्ट्री में कुछ रूल्स दिए गए हैं. सो नाउ वील स्टडी द रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन.
केमिकल इक्वेशन के कुछ जो रूल्स हैं, रूल्स में जो हमारा फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल कहता है कि सारे रिएक्टेंट्स को आप, जितने भी रिएक्टेंट्स दिए हैं आपको, उन सभी रिएक्टेंट्स को आपको लिखना है एट LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दिया है तो उन रिएक्टेंट्स के बीच में आप प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैं केवल रूल्स बता रही हूँ, रूल्स कंप्लीट होने पर हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहला रूल कहता है कि रिएक्टेंट्स को लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स लिखने हैं। दूसरा रूल कहता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमें लिखना है राइट हैंड साइड पे। दिस इज द नेक्स्ट रूल, वेरी सिंपल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में वही बात, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बन रहा है तो उन प्रोडक्ट्स के बीच में हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल हमें कहता है कि ये जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, इनके बीच में आएगी एक एरो। एरो बताएगी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड कर रहा है। दिस इज द एरो। फोर्थ रूल कहता है, ये एरो हमें क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का प्रोसीडिंग डायरेक्शन दैट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। फोर्थ रूल हमें कहता है कि ये जो एरो है, इस पर हम रिएक्शन कंडीशंस को लिख सकते हैं। रिएक्शन कंडीशंस का मतलब है इस एरो पर वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, उस रिएक्शन के लिए कौन सा कैटालिस्ट चाहिए। ये कैटालिस्ट शब्द जो यहाँ आया है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कैटालिस्ट क्या होता है। अभी हम समझ लें कि इस एरो के ऊपर हम लिख सकते हैं रिएक्शन कंडीशंस को। कंडीशंस का मतलब है क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा, क्या चीज़ें चाहिए ये रिएक्शन करवाने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, कि ये हमें रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखें। लेट सपोज आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं और उसकी बर्निंग करवाई जाती है, मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले ली, उसको आपने बर्निंग करवाई। बर्निंग का मतलब हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि कंबशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन या बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो बर्निंग से हम क्या समझते हैं, हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया या बर्निंग करवाई, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है MgO। ये MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इट्स क्वाइट सिंपल, आप देख ही सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इसी बात को अगर मैं लैंग्वेज में लिखती, जैसे आप इंग्लिश, हिंदी लिटरेचर्स में लिखते हैं, क्या लिखा जाता इसको कि मैग्नीशियम रिबन लिया आपने, इट इज़ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लैंग्वेज में लिखना बहुत ही लंबा है, बहुत टाइम लगता है, एंड लैंग्वेज हमें नहीं चाहिए, हमें केवल कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट टाइम में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली चीज़ को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये पूरा मैं लैंग्वेज में नहीं लिख के, मैग्नीशियम रिबन इज टेकन, इट इज़ बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ अ वाइट कंपाउंड और वाइट पाउडर, इतना नहीं लिख के अगर मैंने आंसर में लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO दे रहा है, इट्स क्वाइट सिंपल, हमें समझ आ चुका है। ओके, सो ये काम है केमिकल इक्वेशन का, ये एडवांटेजेस है। कोई पूछे भाई ये चीज़ बनाई क्यों है, ये केमिकल इक्वेशंस दी क्यों जाती है, इसीलिए दी जाती है ताकि हम केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस को लैंग्वेज में लिखने से अच्छा शॉर्ट उनके सिंबल्स और फॉर्मूला यूज़ करके बता दें। अब एक बेसिक बात है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, एक केमिकल कंपोनेंट या चीज़ दूसरे में बदल रही है, पर इसका मतलब क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से आप क्या समझते हैं। सो हियर मैं एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। इसी केमिकल चेंज के जो हम देखेंगे पॉइंट्स, इसी को एक्चुअली केमिस्ट्री में कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल चेंज का नाम है केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि इनमें होता क्या है।
फिजिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट है केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? केवल फिजिकल स्टेट चेंज होती है। मतलब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में बन सकती है, लिक्विड से गैस बन रही है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, कुछ भी फिजिकल स्टेट बदल रही है उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस यहाँ नहीं बन रहा है। थर्ड पॉइंट आता है ये रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस में आपने आइस ले ली, आइस किस स्टेट में है? सॉलिड। अब ये सॉलिड स्टेट से मेल्ट हुई तो ये किस में बदल गई? लिक्विड में। ठीक है, समझ आ गया, फिजिकल चेंज हुआ है क्योंकि फिजिकल स्टेट बदल गई है। ये सॉलिड से आइस लिक्विड में, पानी में, वाटर में बदल गई है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सॉलिड रूप में भी इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या था? H2O। जब ये लिक्विड में बदली स्टेट चेंज हुई है, पर अभी भी ये क्या चीज़ है? H2O। तो इट इज सेम, कोई केमिकल चीज़, कोई नई चीज़ या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी का नंबर चेंज नहीं हुआ, कोई नया एलिमेंट या एटम नहीं जुड़ा, केमिकल कंपोजिशन वही रहती है। इसी को कहते हैं कोई नई चीज़ नहीं बनी है। फिर हम कह रहे हैं ये रिवर्सिबल होती है। बिल्कुल सही, आप देख के बता सकते हैं, है ना ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे? यहाँ ये जो लिक्विड है इसको वापस किस में बदल सकते हैं? सॉलिड में। बिल्कुल इजीली हम बदल सकते हैं। पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, फ्रिज में हम रख दें, उसका टेम्परेचर कम कर दें, बन जाएगी बर्फ़। ऐसे इसका अपोजिट है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे फिजिकल स्टेट की हम बात नहीं करते, फिजिकल स्टेट बदल रही है या नहीं बदल रही, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन बदलती है। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन बदलने का मतलब ही ये बताता है कि यहाँ नया सब्सटेंस, कुछ ना कुछ नई सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। देन थर्ड पॉइंट है ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। ये पॉइंट मैं जनरली लिख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इरिवर्सिबल ही होंगे, ये है कि ये इरिवर्सिबल जनरली होते हैं। कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होती है, नो डाउट। ओके, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर कार्बन का बना है, बर्न होगा तो आपको पता है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये थे केमिकल और फिजिकल चेंज में डिफरेंसेस। आई होप ये सब क्लियर है आपको। फिजिकल चेंज क्या होता है? केवल स्टेट बदलती है, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। केमिकल चेंज क्या होता है? यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, मतलब नई चीज़ बन जाती है। ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, पीछे नहीं जा सकते। इन केमिकल चेंज में ये वाला स्टेप यहाँ नहीं होगा, इरिवर्सिबल का मतलब है ये। अब हम आगे चलते हैं। हम डील कर रहे थे केमिकल इक्वेशन लिखने के रूल्स। मैंने आपको बता दिया जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, जो चीज़ें आपको गिवन है या आपने ली है रिएक्ट करवाने के लिए। लेट सपोज मैंने लिया है यहाँ दो चीज़ें A एंड B, ये चीज़ें हमने ली तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। दीज आर रिएक्टेंट्स। इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, बीच में बनाई है एक एरो। A और B आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं C+D। ये C और D ये जो हमें मिले हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें मिले प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने लिखा RHS साइड पे, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट थे तो बीच में यूज़ किया है प्लस का साइन। अब रिएक्शन इसको क्या चाहिए? अगर लेट सपोज इस कन्वर्जन के लिए हीट चाहिए तो हम एरो के ऊपर कंडीशंस लिखते हैं। जैसे अब हम इनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखेंगे।
ये तो था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हमने डील किया केमिकल रिएक्शन से। आप क्या समझते हैं, एक केमिकल चीज़ दूसरे में बदल रही है। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को छोटे में सिंबल फार्मूला यूज़ करके लिखने का तरीका। फिर मैंने आपको बताया एक छोटा सा रिविजन जो आप 9th में पढ़ के आए हैं कि केमिकल ये जो रिएक्शन में हम फार्मूलाज या सिम्बल्स लिखते हैं, फार्मूला कैसे बनते हैं। तो जिसका भी फार्मूला बनाना है उसके सिम्बल्स लिखें, उनकी वैलेंसी लिखें, वैलेंसी को क्रॉस कर दें, फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ ये जो केमिकल इक्वेशंस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड ये पार्ट्स जो बनाए ये किस हिसाब से बनाए हैं, ये पार्ट्स हमने बनाए हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर इसका बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इनके जो 2 कैटेगरीज बनाई हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या समझते हैं आप इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। ये है सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम शॉर्ट में समझाना चाहें तो जितना मास किसी रिएक्टेंट का यहाँ होगा, लेट सपोज A + BC2 ये रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये एक कंपाउंड बना रहे हैं A2 + B + C2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर यहाँ एक A है तो यहाँ भी A एक ही होना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, मास सेम रहना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पर A का मास है 1 यूनिट, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 1 यूनिट है, यहाँ A कितने हैं 2, तो मास कितना हो जाएगा A + A 1 + 1 2, तो यहाँ मास हो जाएगा 2 यूनिट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से ये रिएक्शन सही नहीं है। रिएक्शन सही है, सही नहीं मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ A 1 है, यहाँ A 2 है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ बराबर हो गए, यहाँ भी A 2 है, यहाँ भी A 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है वो एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं नंबर्स के हिसाब से। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये हम पढ़ रहे हैं नंबर्स, या मास का मतलब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी चीज़ के आपके पास राइट हैंड साइड में हैं सेम इक्वल अमाउंट में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट राइट दोनों जगह बराबर होने चाहिए। सिंपली ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जिन रिएक्शंस या जिन केमिकल इक्वेशंस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपस में बराबर नहीं होते उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर होते हैं इनको बोला जाता है बैलेंस्ड। बोर्ड्स में जनरली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ रिएक्शन दे दी कि ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसे बैलेंस करिए। तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो है बैलेंसिंग। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। आज हम डिस्कस जो बैलेंसिंग इक्वेशन का मेथड करेंगे वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है बहुत क्लियरली। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन कोई भी आपको लिख के दे दे, हिट एंड ट्रायल मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है नो डाउट, पर आज हम एक ट्रिक भी सीखेंगे कि हमें कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशन दे दे हम कैसे समझें। ठीक है, तो आज हम जो डील कर रहे हैं वो है हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। हम डील कर रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशंस। बैलेंसिंग इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई तरह के सवाल आते हैं। ये लगभग आपके चैप्टर का हाफ पोर्शन है। एक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, वो हम करेंगे बाद में। पहले हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंसिंग इक्वेशन समझनी है। थोड़ी बहुत इसमें मैथ्स इन्वॉल्व रहती है। अभी बताया बैलेंसिंग का मतलब आपको करना क्या है,
जितने ए मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, जितना भी लेफ्ट में है उतना भी राइट में हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे बैलेंस। तो इसके लिए बैलेंसिंग इक्वेशंस के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पहले तो मैं आपको समझाऊंगी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग का फर्स्ट मेथड जो हम देख रहे हैं वह है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड आपकी बुक्स में गिवन है। एक हम बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको हमने बर्निंग करवाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये एक रिएक्शन है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो मैग्नीशियम है, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेप 1 इज़ कि आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए आपका एटम या एलिमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, या हम लिखेंगे रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे LHS साइड में क्या कितनी गिवन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट मतलब RHS साइड पे कितने एटम्स गिवन है। लेट सपोज यहाँ बताइए ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, LHS साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है, RHS साइड है। ओके, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर मेरे पास पहला एटम है मैग्नीशियम, फिर एक एटम है ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई थर्ड एटम यहाँ नहीं है, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि हमारे पास जो एटम्स है वो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिए हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में कितने मैग्नीशियम है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक है, यहाँ नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नीशियम हो गए 1। प्रोडक्ट साइड में कितने मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, तो यहाँ ये 1 है, यहाँ भी ये 1 है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन्स। यहाँ हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। बस यही अनबैलेंस्ड है, यही गड़बड़ कर रहा है। केवल आप इसको बैलेंस कर देंगे तो ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करें। यहाँ 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी कितने बन जाएंगे, 2। तो हम इनको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगी 2। एक बात का ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, आप इन फॉर्मूलाज के अंदर मैं यहाँ 2 नहीं जोड़ सकती, गलत हो जाएगा। ये 2 मुझे यहाँ नहीं जोड़ना है। ये जितने आपको फॉर्मूलाज गिवन है इनको आप, अगर आप ऐसा केयरलेसनेस कर देते हैं तो आप शुरू में इनको बॉक्सेस में डाल दो। जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको बॉक्स में एनक्लोज कर दो। इस बॉक्स के अंदर आपको पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना है, चेंज करना ही नहीं है। जो चेंज करने का आपको अधिकार है वो है बॉक्स के बाहर। तो हमने इनको बॉक्स में बंद कर दिया, यहाँ मैं किसी प्रकार का चेंज नहीं करूँगी। अब जो बराबर बनाने के लिए नंबर जोड़ने, कोफिशिएंट जोड़ने, वो कहाँ जोड़े जाएंगे, बॉक्स के बाहर। तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन, यहाँ 2 था, दिख रहा है आपको, यहाँ 1 ऑक्सीजन था, बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने लगा दिए, 2। जब एक चीज़ आप बैलेंस करने के लिए नंबर जोड़ते हैं तो फिर शुरू से चेक करना शुरू हो जाइए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है। अब आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम कितने बन गए, 2। ये जो 2 लगाया है हमने MgO के सामने, ये बताता है कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन दोनों 2 हो गए हैं। तो मैग्नीशियम 2 है, इस साइड मैग्नीशियम कितना है, 1। बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे, बैलेंस करने के लिए जोड़ेंगे हम यहाँ पे 2। अब इस इक्वेशन को वापस देखिए, क्या सब चीज़ें बैलेंस है, चेक करिए। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम कितने हो गए हैं, 2। राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम है 2, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितनी है रिएक्टेंट में, 2। यहाँ पर भी कितनी है, 2, बैलेंस्ड। ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, कितना सिंपल है बैलेंसिंग, है ना सिंपल। केवल हमें नंबर इक्वल करने हैं, इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। अब हम इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स ट्राई करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के, ताकि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए। इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 + O2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, वाटर।
सबको पता है। अच्छा, एक और बात, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि हम क्यों केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ताकि हमें लैंग्वेज में ना लिखना पड़े, हम सारी चीज़ों को शॉर्ट में समझा दें। शॉर्ट में मतलब इक्वेशंस को फॉर्मूलाज से लिख दें तो काम आसान हो जाएगा, बीच में एरो बना दें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ केमिकल इक्वेशंस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। इन्फॉर्मेटिव से मेरा मतलब है कि एक लाइन की इक्वेशन से आपको कई जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि इनकी फिजिकल स्टेट्स इक्वेशन में लिखी जाती है। H2 हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस। ऑक्सीजन भी किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट। यहाँ जो वाटर बना वो किस फॉर्म में बनता है, लिक्विड। तो केमिकल इक्वेशन से हम उनकी फिजिकल स्टेट्स की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ हमें पता पड़ता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ H2 और O2। H2 का एक मॉलिक्यूल लिया, O2 का एक मॉलिक्यूल लिया और H2O मिल गया। तो हमें नंबर, उनकी फिजिकल स्टेट्स में ये तो आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी चीज़ की फिजिकल स्टेट बतानी हो तो आप ब्रैकेट में एब्रीविएट कर सकते हैं, सॉलिड को स्मॉल s, लिक्विड को स्मॉल l और गैस को स्मॉल g। एक और टर्म यहाँ लिखी होती है ब्रैकेट में, AQ। इस AQ सिंबल का मतलब क्या है, इस AQ का मतलब है एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। और ये एक्वस शब्द से क्या समझते हैं, कोई भी चीज़ जिसका सॉल्यूशन पानी में बनाया गया है, कोई भी चीज़ जो पानी में घुली हुई है, उसको कहते हैं एक्वस। तो ये 4 फिजिकल स्टेट्स आप अपने रिएक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि हम कंडीशंस भी बता सकते हैं, तो ये H2O2 को जोड़ के वाटर बनाने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी कंडीशंस जब हम रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि H2 और O2 को जोड़ के जब H2O पानी बनता है तो किसकी प्रेजेंस चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस आपको चाहिए। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करते हैं। वापस मैं वही इक्वेशन लिखती हूँ, H2 + O2 गिव्स H2O। H2 और O2 मिलके H2O दे रहे हैं। वही बात आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे टेबल बनाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं एटम। एटम कौन कौन से हैं, फिर हम लिखते हैं रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सबसे पहला एटम यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन, H। नेक्स्ट एटम दिख रहा है ऑक्सीजन, O। यहाँ पर भी H और O के अलावा कोई तीसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं, H एंड O। रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, H2। तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास है 2। क्वाइट सिंपल। ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट में 2, पर यहाँ ऑक्सीजन कितना है, केवल 1। तो क्या चीज़ अनबैलेंस्ड है, फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारी इक्वेशन को अनबैलेंस कर रही है। कोई बात नहीं, हम इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। क्या करूँ, इसके आगे जोड़ दूँ 2। इसके आगे 2 जोड़ दिया तो यहाँ ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ भी कितनी हो गई, 2। ओके, बैलेंस कर ली हमने। हमने इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2। अब मैंने कहा एक जगह आप चेंज करते हैं तो वापस शुरू से देखना शुरू हो जाइए। शुरू से यहाँ क्या देखेंगे, एक ही एटम है ऑक्सीजन के अलावा। हाइड्रोजन को चेक करिए, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन हो गए 2 × 2 4। अब क्या किया जाए, यहाँ पर लगा दीजिए एक और 2। यहाँ 2 लगाने से ये भी 2 × 2, टोटल कितने बन जाएंगे, 4। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन बन गए 4, यहाँ भी हाइड्रोजन बन गए 4। यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन है 2। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। और भी आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारी इक्वेशंस हैं। कुछ इक्वेशंस को हम अभी और डिस्कस करते हैं। आई वांट कि ये बैलेंसिंग का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। ओके, यहाँ एक इक्वेशन अब मैं ले रही हूँ। यहाँ जो इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर है Fe + H2O। Fe + H2O गिव्स
Fe3O4 Fe3O4 प्लस H2। तो ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दिए हैं उनको बॉक्स में बंद कर लो, ताकि आप इनके अंदर कोई बॉक्स के अंदर कोई नंबर नहीं लिखना है, केवल इनको बॉक्स में बंद कर लेना है। ये हमने कर लिया बॉक्सेस में बंद। नेक्स्ट काम, हमें वही अपनी फेवरेट टेबल बनानी है LHS RHS वाली, जिसमें हम एक तरफ लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में जो आपको एटम गिवन है, दूसरी तरफ लिखते हैं रिएक्टेंट में वो कितने एटम हैं, थर्ड कॉलम लास्ट में हम लिखते हैं प्रोडक्ट में कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक एटम है Fe। और बोलिए, बताइए आप लोग और क्या एटम है? Fe आयरन है। आयरन के अलावा क्या है? हाइड्रोजन दिख रहा है एक। आयरन और हाइड्रोजन के अलावा क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ हमें दिख रहा है ऑक्सीजन। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने? इनके अलावा कुछ नहीं है। कितने हैं आयरन? यहाँ रिएक्टेंट साइड पर एक, 1 आयरन। यहाँ कितने हैं? Fe3, 3 आयरन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहाँ भी लेट सपोज कुछ जुड़ा हुआ होता, यहाँ पे होता 2, तो इसको भी गिनते, 2 यहाँ, टोटल हो जाते 4। अभी नहीं गिवन है तो हम कंसीडर नहीं कर रहे। यहाँ Fe3O4 है आपका, ये बना हुआ है। अब हम वापस चलते हैं हमारी टेबल पर। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं? केवल 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ये तो हो गई, ये टेबल बन गई। अब करनी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग शुरू करते हैं। यहाँ Fe है 1 और प्रोडक्ट में है 3। तो क्या करें, इस 1 को 3 बनाने के लिए हम आगे जोड़ देते हैं नंबर 3। बैलेंस हो गया Fe, हमने Fe बैलेंस कर दिया, इसको इंटू 3 किया तो ये टोटल बन गए 3। बैलेंस हो चुका है। अब देखिए आगे बढ़िए। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ भी 2, RHS में भी 2 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, वहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो इसको बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करूँ? आगे जोड़ दें हम 4। आगे मैंने 4 जोड़ दिया। मैंने कहा जब चेंज करो तब शुरू से देखना, वापस शुरू कर दो। चलिए देखते हैं। Fe3 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4 × 2, अभी बताया ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 4 2 हाइड्रोजन बन गए, यहाँ 8 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन्स? 2 हाइड्रोजन्स हैं, केवल ये रहे 2 हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें? यहाँ पे लगा देते हैं एक और 4। तो अब 4 × 2, अब यहाँ क्या हुआ? 4 × 2, टोटल कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन्स, बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पर? ऑक्सीजन पर। देख लीजिए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 4। सो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स थे उतने ही सेम बैलेंस्ड प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट अब हम एक ट्रिक से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड एक्यूरेट मेथड है, बुक्स में और एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। पहले एक और इक्वेशन कर लेते हैं जिनके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं, आपको लैंग्वेज में इक्वेशन लिख के दी होती है, आपको उससे डिराइव करने हैं पहले उनके फॉर्मूलाज और देन करना है उनको बैलेंस। लेट सपोज एक रिएक्शन है, कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide gas. तो वही बात हम जो 9th में कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। कार्बन का फॉर्मूला है C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, गैस जो मिल रही है वो है CO2। अब आप ये बैलेंस करके बताइए। जब आप बैलेंस करने जाएंगे आपको पता लग जाएगा ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दी है। कार्बन 1 है, वहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए, किसी ने इसको और बैलेंस तो नहीं किया? कोफिशिएंट्स या नंबर्स जोड़कर नहीं करना है, ऑलरेडी बैलेंस थी। अब हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। Na प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2। Na
प्लस वाटर गिव्स NaOH प्लस H2। ये एक इक्वेशन गिवन है। हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में ना देके ऐसे दिया हो, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। इस इक्वेशन से आपने जैसा 9th में सीख चुके हैं, आपको ये फॉर्मूलाज बनाने हैं। अब जो हम ट्रिक डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग की, वो एक एक्यूरेट और श्योर शॉर्ट ट्रिक है, पर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है तो आप पहले फॉलो करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ये श्योर शॉर्ट ट्रिक आपके आगे चलकर लाइफ में किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो सब जगह काम आएगी। आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे यहाँ आगे नंबर्स लिख देने हैं, जितनी चीज़ें दी हुई है A, B, C एंड D। ये 4 हमने कोफिशिएंट्स जोड़ दिए, और दी हुई होती तो E, F, G जितनी दी हुई है उनके आगे कोफिशिएंट्स लगा दीजिए। ABCD से शुरू करते हुए अल्फ़ाबेट्स लगाते जाइए। इतनी बात समझ में आ रही है? जो दिया हुआ था उनके आगे लगा दिए। अब हम देखेंगे यहाँ हमारे पास कितने एटम्स हैं, Na पहला एटम है। यहाँ कितना है, Na कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 × A इज़ A। यहाँ पर Na कितना है, C, तो Na इज़ A = C। नेक्स्ट हम चल रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 × B, वी गेट 2B एंड हियर यहाँ पे कितना है, C। नेक्स्ट एटम पर हम जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एटम है ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास है B, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है B × 1 इज़ B। यहाँ पर ऑक्सीजन है C। नेक्स्ट हम जा रहे हैं वापस से हाइड्रोजन हम पहले ही ले चुके हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2D, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे C + 2D। प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाली साइड में जितने एटम्स है वो एक तरफ, एरो की जगह यहाँ =2 का साइन, और प्रोडक्ट में यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो 1C, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 2 × D इज़ 2D। अब यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे लेट सपोज A इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, B केवल इन दोनों में है, C सब में आ रहा है, किसी भी एक को आप 1 मान लीजिए। मैं लिख रही हूँ लेट C = 1, किसी को भी मान सकते हैं। अगर ज़्यादा जो आ रहा है उसको मानेंगे तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने मान लिया C को 1, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। C को 1 माना तो A भी C के बराबर है, अगर C 1 है तो A भी कितना आ जाएगा, 1। हमें मिल गई A की वैल्यू, C की वैल्यू हमने लेट की है। इसके बाद हम देखते हैं B भी किसके बराबर है, C के। C कितना है, 1, तो B भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं ये, 2B = C + 2D। B की जगह क्या रखना है, 1, 2 × 1 इज़ 1 = C क्या है, 1 विच इज़ +2D। यहाँ हमें D निकालना है। D कैसे निकलेगा, 1 ये ट्रांसपोज होके -1 = 2D, D = 1/2। जब आप ये कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब ये हमने किए थे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस। एक पेज NCERT बुक में पेज नंबर आई थिंक 5 और 6 पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैग्नीशियम को बर्निंग से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। ये आपका ब्लू वाले जो क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन की हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस की, इसको बर्न करवाते हैं तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है विच इज़ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग से पहले वाई इट इज़ एडवाइज टू रब इट विद अ सैंड पेपर, इसको इसीलिए रब करते हैं। इसका आंसर है कि जब मैग्नीशियम लॉन्ग टाइम तक एयर के एक्सपोजर में रहता है, एयर से कांटेक्ट में रहता है, तो एयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑलरेडी इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अगर आप यही मैग्नीशियम रिबन लेके ये रिएक्शन प्रोसीड कराओगे तो इसमें डिफ़िकल्टी आएगी, जितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ये रिएक्शन उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। तो इसका आंसर बस एक लाइन का सिंपल सा है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब कर रहे हैं ताकि अगर उस पर जो वाइट कलर की ऑक्साइड लेयर बन गई है उसको रिमूव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी हुई है आपको H2 + Cl2 gives HCl. When hydrogen reacts with chlorine, it gives hydrogen chloride.
ये सेकेंड क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोराइन यील्ड्स HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हमने फॉर्मूलाज में लिख लिया। क्वाइट सिंपल, बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर एटम हमारे पास कौन कौन से, यहाँ हम फर्स्ट में लिखेंगे एटम, यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट में वो एटम कितने हैं, इस साइड प्रोडक्ट साइड कितने हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक एटम है H, एक एटम है Cl। अब रिएक्टेंट में कितने H है, 2, तो रिएक्टेंट में H है 2। प्रोडक्ट साइड पे कितना H है, केवल 1, प्रोडक्ट में है 1। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, और इस साइड कितना क्लोरीन है, 1। आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह अनबैलेंस सिचुएशन है, तो इसको 1 को 2 बनाने के लिए जैसा हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्या ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है? अगर मैं इसके आगे लगा दूँ 2, अब देखिए बैलेंस है या नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ क्लोरीन है 2 और इस साइड भी हो गया 2, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। हमने केवल एक कोफिशिएंट जोड़ा है HCl के आगे, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक रिएक्शन है, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की रिएक्शन है